ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਰਸ ਬੀਧਾ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ। ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਚ ਘੋਲੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਰਾਮ। ਮਨ ਚਿੰਦੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਠੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਮਨ ਸੁਣੀਐ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਗਲ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੰਤ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
सतगुरु अगे रहमत करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू एक है। ਉਹਦੀ प्राप्ति सतगुरां की किरपा के नाल हुंदी है। सतगुरु जी अगे बेनती जिहड़ी है वो करते हैं, बचन करते हैं, हर हर नाम धियाइए मेरी जिंदड़िए, गुरमुख नाम अमोले राम। मेरी जिंदड़िए इनू संबोधन किया गया है अपनी जिंद नूं, ये बार बार रिपीट होवेगा। ਇਹਦਾ अर्थ करांगे, हे सोहणीए जिंदे। ਜਿਹੜਾ ਅੜਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੜਾੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। सो इत्थे भी जिहड़ा है मेरी जिंदड़ीए का अर्थ करांगे, हे मेरी सोहणीए जिंदे, हे मेरी प्यारीए जिंदे। सो इनू आपां आरंभ च रखांगे, हे मेरीए जिंदे हर हर नाम धियाइए। गुरु रामदास जी कहन लगे, मेरीए जिंदे तू परमात्मा का नाम धियाया कर, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी करया कर। क्यों? गुरमुख नाम अमोले राम। इत्थे गुरमुख के खखे नूं सिहारीए, इहदा अर्थ करांगे गुरु दे कोलों मिलदा है। अमोले का अर्थ करांगे बड़ा अमोलक है, बड़ा कीमती है, बेशुमार। इनू किसी तू पैसे धेले दे वट्टे नहीं प्राप्त कर सकती। मेरीए जिंदे ये बड़ा कीमती नाम है, मिलदा ये गुरु दे कोलों है। हर हर नाम धियाइए मेरी जिंदड़ीए, गुरमुख नाम अमोले राम। तो मैं एक बार इत्थे कहा सी, दुनिया दे विच हर एक चीज़ मुल मिलती है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रेट है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है नाम भी मुल मिलता है। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਵੱਖਰਾ देना पैंदा है। एक भगत कबीर साहब का बचन है कि कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। कंचन कहते हैं सोने को, कहते ये नाम सोने के बराबर नहीं मिलता, मुल मिलता है पर धन दौलत के बराबर नहीं मिलता। फिर किद्दां मिलता? कह लगे मन दे राम लिया है मोल। कहते अपना मन देना पैंदा है, गुरु के चरणों के विच अपना मन रखना पैंदा। तो जिदन साडा मन गुरु के चरणों के विच जाके टिक गया, याद रखियो उदन फिर गुरु जिहड़ा हिरदे च नाम की दात पा दिंदा। एक छोटी जी मैं साखी तुहाडे नाल बिल्कुल शॉर्ट च साझी कर दिना। जिस वेले भाई मंझ गुरु अर्जुन साहब के कोल आउंदे ने ना, आण के इहो बेनती करते हैं कि दाता जी कृपा करो, मैनू सिक्खी की दात बख्शो। साखी आप बड़ी बारी साझी की है। गुरु अर्जुन साहब कह लगे, भाई मंझ एक गल याद रखी, तू सखी सरवरां दा पूजक है तो सिक्खी दे उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी। हुण इस नुकते नूं पकड़ च रखियो, जिन्ना चिर अंदर कूड़ है, जिन्ना चिर अंदर जिहड़ा वो होरां देवी देवतियां नूं पीरां पैगंबरां नूं मनदा फिरदा है, मड़ियां मसानां नूं मिलदा, उन्ना चिर मंगिया भी गुरु घरों सिक्खी नहीं जे मिलदी, उन्ना चिर मंगिया भी नाम नहीं मिलता। पर जिस वेले भाई मंझ ने सेवा की, सिमरन किया, जदों ये हनेरे दे विच खूह दे विच डिगदे ने, जदों अखीर ते बख्शिश हुंदी है, खूह चों कढ के सतगुरां ने यह गल कही सी, भाई मंझ अज तू झोली कर, तेरी झोली दे विच मैं सिक्खी दी दात पाउंदा। याद रखियो जे भांडा लिबड़िया होया ते मंगण दे उत्ते भी गुरु घरों दात नहीं जे मिलदी। जिदन भांडा हिरदे दा साफ हो गया, पवित्र हो गया, उदन गुरु आवाज़ मार के कहंदा कि आ पुੱਤ तेरी झोली दे विच हुण नाम दी दात पा दे। सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, हर हर नाम धियाइए मेरी जिंदड़ीए, हे मेरी जिंदे परमात्मा का नाम धियाया कर। पर एक गल याद रखी, इस नाम नूं कोई एवें ना समझी गुरमुख नाम अमोले राम, ये बड़ा कीमती है। तो कीमती चीज़ याद रखियो, कीमती भांडियां दे विच कीमती थावां ते ही शोभदी है। असी मार्केट जाने हैं ना, अजकल प्लास्टिक का बड़ा रिवाज है, प्लास्टिक दी चीज़ां तुहानूं बाहर रेहड़ियां ते मिल जाणगीआं। ज्यों ज्यों चीज़ां की कीमत वधदी जाती है, त्यों त्यों उन्हां दी सिक्योरिटी वधदी जाती है। प्लास्टिक दीयां चीज़ां बाहर ने, लोहे दीयां चीज़ां अंदर ने, सोना होर अंदर है, हीरे जिहड़े ने उन्होंने तिजोरी च रखिया जाता। कीमत पै गई ना। हुण देखो प्लास्टिक का ढेर लगा है, उतों कोई चुक के नहीं खड़दा। छोटा जिहा हीरा उन्होंने पता नहीं किन्नी क टाइट सिक्योरिटी दे विच रखिया होया है।
काहदे वास्ते उन्होंने पता है दुकानदार नूं कि इस प्लास्टिक का कोई मुल नहीं है, जे कोई चुक के भी लै जाएगा मग्गा बाल का 10-15 रुपए का है, पर एक छोटा जिहा हीरा करोड़ों की कीमत रखता है। याद रखियो बाहरी तौर पर तुसीं भटकदे फिरोगे डेरियां दे, उहदा कोई मुल नहीं जे जिधर गुरु का नाम हिरदे च आण के टिक जाता। ये बेशुमार कीमती ये परमात्मा का नाम उन्हां हिरदियां दे विच टिकदा है जिहड़े हिरदे अंदरों साफ पवित्र हो जाते हैं तो विकारां तो बच जाते हैं। सतगुरु कह लगे ये बड़ा कीमती है परमात्मा का नाम। पर एक पासे ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, कह लगे मत्थे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। लोगों का हाल कि लोगों ने राम नूं खेड बनाई हुई है। अज हर कोई जिहड़ा है वो नाम वंडदा पिया है। डेरियां ते तुसीं वेखो मैनूं बाबे ने नाम दिता, मैनूं इन्ने नाम दिता। ये नाम विकाऊ नहीं हैगा। एक गल याद रखियो जी, जिहड़ी चीज़ विकण लग पैंदी है उहदी हमेशा कदर घट जाती है, जिहड़ी चीज़ कमाई जाती है उहदी कदर वध है। साडे वड्डियां ने पग्गां नूं कमाया सी, जंग युद्ध करके कुर्बानियां करके कमाया सी। साडे बजुर्ग सिरां तो पग्गां नहीं सी लाउंदे। साडे गां आउण वाले बच्चों नूं सहजे ही प्यो दे कोलों सरदारी मिल गई, उन्हां नूं कदर ही कोई नहीं, ला के किते रख दिंदे ने, सिर नाइयां दीयां दुकानां दे ने। जिहड़ी चीज़ मुੱਲ खरीदोगे उहदा मुੱਲ पै गया, उहदी कदर नहीं रहिंदी। जिहड़ी चीज़ कमाई जाती है याद रखियो उहदी कीमत कोई पा नहीं सकता। गुरु साहब ने सिੱਖੀ दिती सी, जिन्हां ने सिੱਖੀ लई कुर्बानियां कीतियां, उदों जंगलों के विच रह के भी सिख बाणी तो नहीं सी टुटदा। अज असी जिहड़ा वो सिੱਖੀ केवल तो केवल मैनूं माफ़ कर देना खरीदण तक सीमित रह गया। कोई किसी डेरे की गल करदा है, कोई किसी संप्रदा की गल करदा है, अंदरों सारे आपां खाली दे खाली, अंदर नाम किसी दे कोल भी नहीं हैगा। उदों संप्रदा नहीं सी हुंदियां, उदों केवल तो केवल जिहड़े सन कौम रहिंदी हुंदी सी, ते कौम नूं कई वारी घरां च ते कई वारी घरां तो बाहर रहना पैंदा सी। सिख अंदरों पक्के सन। अज परमात्मा ने सानूं मकान पक्के देते, गुरु घर पक्के देते, पर सिख अंदरों कच्चे होए पए ने। जिहड़ी चीज़ तुहानूं सहजे मिल जाएगी उहदी कीमत नहीं है। पर सतगुरु कह रहे इत्थे कह लगे ये नाम बड़ा कीमती है, तो जिन्हों तुसी जिहड़ा मनुख इस नाम नूं कीमती समझ के जपेगा ना, तो याद रखियो कदर उन्हों ही जिहड़ी पैंदी है, तो परमात्मा का नाम असर भी उस हिरदे च करदा। नहीं तो तुसी उहदा माला फड़ के राम राम करी जाओ, रब रब वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाओ। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहेगी जे तेरा हिरदा नहीं मनदा ना, तो माला फेरन का कोई फायदा नहीं। राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए। फेरी जा माला जिन्ना चिर मर्जी फेरी जा, पर जे कोई वडभागा अंदरों पतीज के नाम जपदा है ना, तो गुरु अर्जुन साहब कहते किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। जिदन एक किनका भी टिक गया, मैं राती भी क्या सी मन्ने की गत कही न जाए, जिदन किनका भी टिक गया याद रखियो वो परमात्मा की रहमत का मीह वरसा देगा। तो जे अंदर रहमत ना होई, जे अंदर ना टिकिया, फिर सारी दिहाड़ी भावें बह के माला फिरी जा तां भी गल नहीं बननी। ये बड़ा कीमती है। मिलना तेनों ये गुरु दे कोलों है। हर हर नाम ध्याईए मेरी जिंदड़िए, हे मेरी ये जिंदे परमात्मा का नाम ध्याया कर। मिलना कित्थों कहते गुरमुख नाम अमूले राम। तो ये नाम जिहड़ा गुरु दे कोलों मिलना है। तो एक गल याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है सच्चे गुरु दे कोलों नाम मिलना है। तुसी दो बचन आनंद साहिब दे विच पढ़दे जे, एक थां ते सतगुरु कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियाँ सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी। नदर का अर्थ है बख्शिश जी, तो बख्शिश हुंदी उहदे हिरदे च समाउंदी है। तो जे तुसी आखो जी सानू महापुरखा ने नाम दिता है, जे आखो सानू बाबियां ने नाम दिता है, तो सतगुरु कह लगे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु तो बिना कोई नाम नहीं दे सकता। हाँ सिख जिहड़ा वो नाम दृढ़ करवा सकता। कोई गुरमुख प्यारा होवे वो कह सकता भाई बैठो बह के गुरु गुरु जपीए, भाई बैठो बह के बाणी पढ़िए, बैठो बह के कीर्तन करिए, बैठो बह के कथा करिए, बाणी सुनिए। ये तो किया जा सकता है, पर याद रखियो नाम नहीं दिता जा सकता। नाम गुरु देंदा, जिहड़ा पखंडी नाम देंदा सतगुरु कह लगे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी की होवेगा जी। कहते कच्चे सुनते कच्चे कच्ची आख वखानी, वो सारे का जीवन झूठा पै जाएगा। सतगुरु कह लगे ये बड़ा कीमती है, मिलता गुरु दे कोल है। अगे कह लगे हर रस बीधा, बीधा का अर्थ है विनना।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਝ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਬੀਧਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ। ਝਕੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਝਕੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਗੁੜੋਚ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੋੜੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਣਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਰਾਮ। ਅਣਤ ਕਾਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਝਕੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਨ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਰੋਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਖੋ, ਮਨਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ,
पर जे असी इनू करन लग पईए तो सतगुरु कह लगे गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़ीए, कहते गुरु की मत लैके हुण मन नू टिका। अब पहले समय जोगी मन नू टिकाउण दा यतन करते सन, पर उन्हों का मन उन्ना क चिर टिकदा सी जिन्ना चिर चौंकड़ा मारिया वो उगाह नहीं सी जा पाउंदे। जो संसार च विचरते सन फिर उन्हों का मन जिहड़ा सी वो विकारी भावना वाला हो जाता सी। गुरु की मत लैके जे मन नू टिकाएंगे तो मन परमात्मा दे विच जाके टिक जाएगा। बस टिकाउण टिकाउण दा अंतर है। अज भी लोग जिहड़े ने वो गल कहिंदे ने कि भाई ये तुसीं ध्यान लाया करो। बड़ी अजकल यूट्यूब ते चीज़ां चलदियां ने, लोग ये करते भी ने अपने आप मोटीवेट करने वास्ते जां आउण वाले समय दे विच जिहड़ियां मुश्किलां नूं हल करने वास्ते लोग ध्यान नहीं टिकाउंदे ने। मैं इत्थे भी एक बारी समा लाया सी, पर तू नाम दे विच मन नूं जोड़ दे। जिदन नाम दे विच टिक गया कह लगे अनंत न काहू डोले राम, याद रखी उदों बंद बंद ते कट्टिया जा सकता है पर फिर मन नहीं डोलेगा। उदों खोपर ते लथ सकदा फिर मन नहीं डोलेगा जिदन मन गुरु की मत लैके टिक गया। अज मन साडा टिकदा नहीं। जे टिकदा है असी बड़ा जद्दोजहद करके महा ध्यान ला ला के इत्थे लाइट इदां दे वहमां च पै पै के वो मन टिकाउने आ। माड़ा जिहा ध्यान छड्डिया फिर उही हाल है, फिर बंदा हसदा फिर रोंदा है। कहंदे गुरु की मत का अर्थ आपां करांगे तू शब्द दे विच मन करया कर, तू कोशिश करया कर बाणी पढ़दा रहा कर। ते एक गल तुहानूं दस्सां, बाणी तीन तरीकिਆਂ नाल पढ़ी जाती, एक बोल के, एक मूँह दे विच ते एक सुरत दे नाल। बोल के आपां पाठ करी जाने आ, बोली जाओगे रसना दे नाल ते याद रखियो मन नहीं सुनता, मन इधर उधर भज्या, पता है अखां ने वेखी जाना तो पाठ चली जाना। जो बोल बोल के बार बार एक बाणी पढ़ी जाती वो कई बारी साडी मैमरी दे विच सेव हो जाती है, बंदा फिर मूँह च भी बाणी पढ़ी जाता है। कई गुरमुख तुरे फिरदे जिहड़े वो बाणी पढ़ी जाते हैं, पर ध्यान दिओ उत्थे भी मन नहीं जे कई बारी टिकदा। मन चुप करके बाणी पढ़ रहा है, वो मैमरी चो चल रही है, रिपीट हो रही है बाणी, पंक्ति तो अगे पंक्ति, पंक्ति तो अगे, पर वो मन नहीं टिकिया। जिदन तुसीं सुरत दे नाल बाणी पढ़ोगे मन नूं टिका के, कई बारी जपजी साहब कर लगे सारी सारी दिहाड़ी निकल जाती है। भाई वीर सिंह के जीवन की एक घटना है। भाई वीर सिंह जी जपजी साहब का पाठ कर रहे सन। एक गुरमुख प्यारा आया तो देखदा है, वो सुनदा सी भाई वीर सिंह जी बाणी पढ़ रहे हैं जपजी साहब जी, तो एक पंक्ति ने उन्होंने 5-7 बार रिपीट करता। उन्हें गुरमुख प्यारे ने जो भाई साहब ने जपजी साहब के पाठ की समाप्ति की, बड़े सियाने ना पांच भी कह लगा भाई साहब एक बेनती करा, जो जपजी साहब का पाठ जबानी कंठ नहीं भुलदा है तो गुरका साहब लै लेना सी। भाई साहब कहते मैंने भुलदा नहीं, मन नहीं सी पंक्ति सुनदा। मैं क्या सी जे तू नहीं सुनी तो गां मैं भी नहीं लंघना, जिन्ना चिर तू नहीं सुनेगा मैं अगे नहीं चलना, तू सुनेगा तो मैं गां पंक्ति पढ़नी। इन्ना उन्हां दा मन टिकदा सी। मेरे कहण दा भाव जिद्दन सुरत दे नाल बाणी पढ़ोगे ना, उत्थे जुबान नहीं बोलेगी, उत्थे मन दिमाग नहीं बोलेगा, उत्थे मन जिहड़ा शब्द दे विच टिकेगा, वो पाठ करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। सुरत नूं टिका के जपजी साहब का पाठ जिन्हों 5-7 मिनट लगते हैं, कई बार 2-2 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। पर जिद्दन ये तरीका तू वरत लिया, सतगुरु कहते गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़िए, गुरु की मत लैके जिद्दन मन टिका लिया, याद रखी अनंत ना काहू डोले राम, उदन मन होर पासे नहीं डोलेगा। मन चिंदेड़ा फल पाया, कह लगे फिर चिंदड़ा का अर्थ करांगे मन चितव्या मन इच्छत, कहते फिर मन इच्छत फल प्राप्त हो जाता है। कदों हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम, कह लगे परमात्मा दे गुणा वाली बाणी वो मनुख फिर अपनी रसना तो जो बोलता है तो उन्होंने मन चितव्या जोड़ा वो फल मिल जाता है। बाणी तो असी बड़े पढ़ते हैं, पर फिर भी कहने कि बाबा जी बाणी पढ़ी है गल नहीं बनी, बाणी पढ़ी कष्ट नहीं गया, पढ़िया बाणी पढ़ी नहीं। तो इदा हो सकता भी डॉक्टर को दवाई लियादी होवे कि कहो डॉक्टर साहब दवाई तो खाधी है पर आराम नहीं आया, इदा नहीं होंदा। तुसीं रोटी खाधी है कह सकते भी मैं रोटी खाधी है भुख नहीं मिटी मेरी, हो सकता इदा नहीं होगा। जे रोटी अंदर गई है भुख जरूर मिटेगी, जे अंदर बाणी गई है तो याद रखियो आनंद जरूर बनेगा। तुसीं रोज़ पढ़ते जे मोहर ला के कि आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे कदों सुनी सच्ची बाणी। मैं तो सुनी कोई नहीं बाणी, बाणी जिहड़ी सी वो रसना पढ़दी रही, मन ते बाहर सी जिहदा इलाज होना सी। तुसीं डॉक्टर नूं जाके कहो जी मैनूं दवाई दे दिओ, वो आखे भी खा ला, वो आखे भी चल दूसरे नूं खवा दिओ, मेरा भरा चाचा ताया कोई घरों आएगा उन्होंने दवाई खवा दिओ,
डॉक्टर आखेगा दवाई तेनों खानी पैनी है। असी भी इदा ही करते हैं। मन ने बाणी सुननी सी, मन बाहर भज्या फिरदा है, असी कहने जी असी इन्नी बाणी पढ़ते, बाणी तो तन पढ़ता रहा, मन तक तो पहुँची कोई नहीं। सतगुरु कह लगे जिदन तू मन करके बाणी पढ़ लवेगा हर प्रभ गुण, नानक बाणी बोले राम, जो परमात्मा के गुणा वाली बाणी अपनी रसना तो उचारेगा ना, मन चिंदड़ा फल पाया, कहते उदों मन इच्छत फल प्राप्ति तेनों हो जाएगी। अगले सतगुरु जी जिहड़े वो बंद दे विच बख्शिश करते हैं, कहन लगे गुरमत मन अमृत बुठड़ा मेरी जिंदड़िए, कह लगे हे मेरी जिंदे, गुरु की मत जो लैके चलेगा ना, तो फिर मन दे इत्थे नन्ने नूं सिहारी है। गुरमत का अर्थ आप उही कर रहे हैं, गुरु की मत द्वारा। मन का अर्थ नन्ने नूं सिहारी का अर्थ करांगे मन दे विच। अमृत का अर्थ होंदा नाम जल, आत्मक जीवन देने वाला। बुठड़ा का अर्थ है जी वसना। कह लगे जो गुरु की मत लैके परमात्मा के चरणों च सुरत जोड़न का यतन करेगा, उदन नाम जिहड़ा है अमृत रूपी नाम आन के मन के विच बुठ जाता है, वस जाता है, वो उत्थे टिक जाता है। गुरमत मन बुठड़ा, गुरमत मन अमृत बुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। कह लगे बैन का अर्थ है बोल, अलाए का अर्थ है बोलना। कह लगे फिर मुख तो भी मनुख अमृत वर्गी बाणी भाव परमात्मा का नाम ही बोलता है। एक बड़ा सोहना कुदरत का निजम है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, कह लगे कि भलिया जो जी होए सो उगवै, मोह का कया वाओ। कहते जिहड़ी चीज़ अंदर है उही प्रगट होवेगी। मैं होर सौखा कर देना, गर्मी बड़ी अजकल, आपां पानी जिहड़ा वो ठंडा रखिया होवे, फ्रिज चला लो, किसी वाटर कूलर चला लो, किसी होर भांडे चला लो, तो वाटर कूलर दे विच जां किसी केतली च पाया होया पानी बाहरों तो नहीं ना दीदा, स्टील दी की पता लगे की है। तुसी उहदी टूटी खोल के थल्ले भांडा कौली गिलास करोगे, जिहड़ी चीज़ अंदर पाई है उही निकलनी है। केतली च पानी भी पा सकते जे, चाह भी पा सकते जे, कॉफ़ी भी पा सकते जे, दुध भी पा सकते जे। तुसी पानी पा के क्यों कि दुध निकल जे, निकलेगा। फिर असी किद्दां कहने मैं सारी दिहाड़ी ते विकार इकट्ठे करदा फिरदा, रात नूं कहंदा मेरे मूँह दे विचों बाणी निकले तो मेरा भला हो जाए, किद्दां गल बन जाएगी। अपने हथी चाह बना के केतली च पाई, उस चों चाह ही निकल रही, होर कुछ नहीं निकल रहा। जिहड़े तू कर्म कमा रहे उहदा नहीं तैनूं पता लगदा भी ओह ही तेरे जीवन दे विचों गां कर्म बन के आउणे ने, वो किवें बदले जा सकते हैं। सतगुरु इत्थे बड़ी सोहनी सानूं गल समझा रहे हैं। कह लगे जे मन दे विच अमृत नाम आण के वस गया, फिर रसना तो भी अमृत ही निकलेगा। पर मैं एक नाल बेनती करां, जे हिरदे च विकार ने तो याद रखियो अंदरों फिर विकारां दी अग ही निकलेगी। बर्फ रखोगे ठंडक आवेगी। किसी भांडे च बर्फ रख दो ना, भांडा ठंडा हो जाता, उस च कोले पा दो, भांडा गर्म हो जाना है। ये साडा हिरदा भांडा, इस तुसी नाम पा दो, विकार पा दो, जो पाओगे वो निकल आना है। सतगुरु कहते जिहड़ा अमृत नाम पाउंदा है उहदे हिरदे च फिर उहदे हिर रसां दे राही मूँह दे विचों जिहड़ा मुख अमृत, मुख का अर्थ है मुख दे विचों अमृत बैन अलाए राम, वो अपनी रसना तो अमृत बाणी जिहड़ा उचारदा है, भाव अमृत रूपी बोल जिहड़े ने वो बोलदा है। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ीए। हुण जिहड़ा बार बार नाम जपदा है, बंदगी करदा, उहनूं भगत कहा जांदा, जिहड़ा भगती करदा है। वैसे भगती के अर्थ बड़े बड़े विद्वानों ने कीते ने, आपां फिर किते सांझे करांगे, हुण मेरे कोल समय नहीं। सतगुरु कह लगे जिहड़ा बंदगी करन लग पिया भगत जन, उहदी फिर सुरत परमात्मा नाल जुड़दी। याद रखियो बाणी किवें प्रगट होई। ये मैं अक्सर उदों ये सबजैक्ट लेना हुन्ना जो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस या पहला प्रकाश मनाउने। सिर्फ एक इत्थे अज के संबंध च बेनती कर देना, बाणी कुछ तरीकों के नाल प्रगट हुई है। भगत जनां दे हिरदे च कदों प्रगट हुंदी है, जदों भगत सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, सुरत परमात्मा के चरणों से जुड़ती है ना। सुरत परमात्मा के चरणों के विच जुड़न तो बाद जिहड़ी चीज़ हिरदे चों पैदा होंदी है उहनूं बाणी कहा जाता है, उहनूं भगत बाणी कहने आपां। कहन लगे अमृत बाणी, गुरु साहिब का बचन है, तत्त वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। कहते ये अमृत बाणी जिहड़ी ये तत्त सार है, निचोड़ है। आई किद्दां है? ज्ञान जो सिमरन का ये दुनियावी ज्ञान नहीं, ध्यान जो परमात्मा के चरणों के विच सुरत जोड़ी, सुरत जोड़न तो बाद जिहड़ा ज्ञान प्रगट होया, वो ज्ञान के रूप दे विच जिहड़ी सन प्राप्ति हुई उहनूं असीं बाणी कहने।
मैं एक उदाहरण दे देना समझण वास्ते। जिवें असीं अर्क कढ़दे आ ना किसी चीज़ का, वो जिहड़ा अर्क पैदा होकर निकलदा है ना बाहर, वो तत्त हुंदा है, बाकी जिहड़ा पदार्थ वो साडे काम नहीं आउंदा। जो सुरत परमात्मा के नाल किसी की जुड़ती है, सतगुरु कह लगे अमृत बाणी भगत जनांगे। हुण भगतां दे अंदर बाणी किवें प्रगट होई, जो इन्हां ने पिछला कर्म किया, वो पिछला कर्म किहड़ा सी, मुख अमृत बैन अलाए राम। जो रसना तो बाणी परमात्मा का नाम जपिया ना, हिरदे च फिर बाणी प्रगट हुई। जो बाणी प्रगट हुई, सतगुरु कह लगे अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ीए। मेरी जिंदे ये गल चेता रखी, भगतां दी रसना तो निकली हुई भी जिहड़ी अमृत बाणी है ना, मन सुनिए हर लेवल आए राम। कह लगे मन नूं चंगी तरह सुननी चाहिए है, मन करके सुरत करके इनू जिहड़ी परमात्मा के चरणों च लिव ला के सुनिया कर। जिहड़ी भगतां दी बाणी है, सिख वास्ते 15 भगत ने, वो ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च प्रवान होए ने। कच्ची बाणी मैं कल भी शायद उदाहरण दी सी, कबीर जब हम आए जब इनू सिख नहीं पढ़ता, ना इनू मुक्तिदाता मनदा है। सिख वो बाणी पढ़ता जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच प्रवान है। सतगुरु कह लगे मन सुनिए हर लिव लाए राम। परमात्मा च लिव ला के उर च सुरत जोड़ के इस बाणी नूं तू जिहड़ा है वो ध्यान नाल सुनिया कर। की मिलेगा, कह लगे चिरी विछुन्ना। विछुन्ने का अर्थ है विछड़िया। कह लगे चिरां तां विछड़िया होया हर प्रभ पाया। वो परमात्मा जिहड़ा बड़े लंबे समय का विछड़िया होया सी, बहुत जन्म विछुरे थे माधो। वो परमात्मा जिहड़ा बड़े लंबे समय तो विछड़िया होया सी, गल मिलिया सहज सुभाए राम। कहते जो बाणी भगतां दी पढ़ी, अमृत बाणी पढ़ी, सहजे ही परमात्मा ने आन के घुट के सीने दे नाल ला लिया। वो परमात्मा ने जिहड़ा पता नहीं किन्ने जन्मां दा मेरे तो विछड़िया होया सी। अगे कह लगे सतगुरु अखीर ते जन नानक मन आनंद भया है। मैं आरंभ च कहा सी बाणी पढ़ो नाम जपो तो जिंदगी च आनंद ना आवे, इदां ते हो ही नहीं सकदा। हुण जिद्दण अंदर बाणी टिक गई, सतगुरु कह लगे जन नानक हे नानक मन आनंद भया है। हुण मन दे विच आनंद ही आनंद बनिया रहिंदा है। मेरी जिंदड़ीए हे मेरी जिंदे अंदर आनंद ही आनंद है। कदों अनहत शब्द वजाए राम। जो अनाहद नाद चलदा है बिना किसी साउंड तो, बिना किसी साजां तो, जो परमात्मा का एक रस शब्द चलता है ना, उदों जिंदगी दे विच आनंद ही आनंद रहिंदा है। उदों अंदरों शब्द चलता है तो सुरत जिहड़ी है वो अमृत नाम नूं पींदी है, जिन्होंने बाणी कहती है चिम चिम वरसै अमृत धारा। फिर अंदरों ही वो अमृत धारा निकलती है तो मन पीवै तो वो सुन शब्द विचारा, उस शब्द के विचार को सुन के मन उस अमृत नाम नूं फिर पींदा है। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़ीए। अनहत शब्द वजाए राम। तो उस हिरदे च अनाहद नाद भाव एक रस परमात्मा का नाम चलता है तो जिंदगी दे विच जिहड़ा वो मन हमेशा आनंद दे नाल भरिया रहिंदा। सो ये सी पहले 2 पदियां दी विचार। ये 4 पदे ने इस शंत दे ते आपां 2-2 करके वाचांगे। अगले दोवां दी विचार कल नूं समय की समाप्ति होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुभाए रामा। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़ीए। अनहत शब्द वजाए राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की